السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں پراز احمد اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے میاں صاحب کی واپسی پر۔ میرے دل میں انتقام کی تمنا نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا نہیں۔ جب بھی موقع ملا دن رات ایک کر کے عوام کی خدمت کروں گا۔ میاں نواز شریف ملک کو ترقی کی راہ پر دوبارہ گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی تعمیر کرنے والوں میں سے ہیں۔ بجلی ہمارے دور میں سستی تھی، اب پھر غریب کی پہنچ میں لائیں گے، مزدور کا گھر بھریں گے۔ زخم اتنے لگے ہیں کہ وہ بھرتے بھرتے وقت لگے گا، لیکن میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی تمنا نہیں ہے، بدلے کی کوئی تمنا نہیں ہے نواز شریف کے دل میں۔ نواز شریف کے دل میں اگر تمنا ہے بس یہی ہے، میری یہ قوم کے لوگ خوشحال ہو جائیں، ان کے گھروں میں خوشیاں آ جائیں، ان کے گھروں میں خوشحالیاں آ جائیں، ان کے گھروں کے اندر روشنی کے چراغ جلیں، ان کو روزگار ملے۔ میں اس قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کی ہے۔ اللہ پاکستان مسلم لیگ کو اور بھی طاقت اور توفیق دے، یہ خدمت کا سفر جاری رکھ سکے۔ میرے اور مریم کے خلاف جعلی مقدمات بنائے گئے، شہباز شریف اور بیٹوں کو بھی جیل میں بند کر دیا۔ نواز شریف نے پاکستان آ کر پہلے خطاب میں اپنے دکھ بیان کر دیے، کہا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اسی لیے وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا، ساتھیوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ رانا ثناء اللہ، حنیف عباسی کو بند نہیں کیا گیا، سزائے موت دینے کے چکر میں تھے۔ مریم بیٹھی ہے یہاں پر، آپ کے سامنے ہے، یہاں پوچھے اس سے کہ وہ اذیت کا لمحہ کیسے کوئی بھلا سکتا ہے جب مریم کو اپنے قیدی باپ کے سامنے گرفتار کیا جا رہا تھا۔ میں کوٹ لکھپت جیل میں قیدی تھا، بند تھا، نیب والے آ کر میری آنکھوں کے سامنے اس کو قید کر کے لے کے جانا چاہ رہے تھے، کو بھی جیل میں بند کر دیا، بیٹوں کو بھی جیل میں بند کر دیا۔ یہ رانا ثناء اللہ کو بند نہیں کیا بلکہ سزائے موت دینے کے چکر میں تھے، حنیف عباسی کو بند نہیں کیا بلکہ سزائے موت دینے کے چکر میں تھے، اور لوگوں کو خواجہ سعد رفیع جو ابھی آپ کے سامنے بات کر رہے تھے 2 سال جیل میں بند رکھا۔ 23 سال میں 15 سال میں یا تو ملک سے باہر یا جیل میں یا مقدمے بھگت رہا۔ اگر یہ 23 سال میں نے پاکستان کو دیے ہوتے، آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک جنت بنا ہوتا، جنت۔ ہم پھر جنت بنائیں گے اس کو انشاءاللہ۔ نواز شریف نے چیئرمین پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر طنز اور تنقید کی، بولے مہنگائی کی ذمہ دار شہباز شریف نہیں، وہ شخص ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اور کہا کہ نون لیگ کے جلسے میں ڈھول کی تھاپ پر ناچ گانا نہیں ہوتا، ہم وہ نہیں جو کسی کی پگڑی اچھالے۔ بولے ان کے پاس تسبیح ہے لیکن تب پڑھتے ہیں جب کوئی دیکھتا نہ ہو۔ آج تو سوچنا پڑتا ہے، حالات اتنے مشکل ہو گئے ہیں، بجلی کا بل دیا جائے یا پھر بچوں کا پیٹ پالا جائے۔ یہ شہباز شریف کے زمانے کا نہیں ہے، یہ اس سے بہت پہلے، ابھی بہت پہلے کا شروع ہو چکا تھا۔ دیکھیں ہماری بہنیں کتنے آرام سے جلسہ سن رہی ہیں، کوئی ڈھول کی تھاپ پہ ناچ گانا یہاں نہیں ہو رہا۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کسی کی پگڑی اچھالیں، یہ پگڑی اچھالنا ان کا کام تھا، ہمارا نہیں ہے۔ تسبیح میرے پاس بھی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تسبیح دوسروں کے سامنے نہ پڑھا کروں، لیکن تسبیح میں اس وقت پھیرتا ہوں جب مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، بغل میں چھری، منہ میں رام رام، یہ مجھے نہیں آتا۔ قائد نون لیگ نواز شریف نے تقریر کے آغاز میں اپنے خاندان کے مرحومین کو یاد کیا اور کہا کہ والد، والدہ اور اہلیہ کا انتقال ہوا جنہیں قبر میں بھی نہ اتار سکا۔ کلثوم نواز کی طبیعت خراب تھی، جیل حکام سے درخواست کی کہ ایک بار بات کروا دے، فون ہوتے ہوئے بھی بات نہ کرائی گئی۔ وہ اپنے پیارے اس آپ سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو کبھی دوبارہ نہیں ملتے، واپس نہیں آتے۔ میرے والد فوت ہوئے، میں قبر میں نہ اتار سکا، میری والدہ فوت ہوئی، میں قبر میں نہ اتار سکا، بیوی کلثوم فوت ہوتی ہے تو مجھے کہاں اطلاع ملتی ہے؟ قید خانے میں، جیل میں اطلاع ملتی ہے۔ جیل خانے کے سپرنٹ سے پوچھو، میں اس کی منتیں سماجتیں کرتا رہا۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے میز کے اوپر 2 فون پڑے ہیں، یہ 2 موبائل پڑے ہیں، یہ 2 لینڈ لائن پڑی ہیں، یار تم ایک چھوٹی سی کال ملا کے میری بات کرا سکتے ہو، کرا دو۔ کہنے لگا ہمیں اجازت نہیں ہے، بات نہیں کرائی۔ کون سے شعر پڑھے آپ کو سنواتے ہیں۔ غالب نے شاید ہم جیسوں کے لیے کہا ہے، مجھ جیسوں کے لیے کہا ہے غالب نے شاید، زندگی اپنی کچھ اس شکل سے گزری غالب، زندگی اپنی کچھ اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے، ہمیں نہ چھیڑو، زخموں کو نہ چھیڑو ہمارے، ورنہ ہمارے اتنے آنسو نکلیں گے کہ طوفان آ جائے گا۔ نواز شریف نے خطاب کے آخر میں پاکستان اور مسلم امہ کے لیے دعا بھی کی، کیا کیا مانگا آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
दुआ करो अल्लाह ताला तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, तू रब्बुल आलमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारे मुल्क को कौम को मुसीबतों से नजात अता फरमा, हमारे घरों में खुशहाली के असबाब पैदा कर, हमारे बच्चों को रोजगार अता फरमा, बाइज्जत रोजगार अता फरमा, हमें महंगाई से निजात अता फरमा। तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस वक्त जाती उम्र अपनी रिहाइश गाह में मौजूद हैं। अपनी रिहाइश गाह पहुँचने पर नवाज शरीफ का वालेहाना इस्तकबाल भी किया गया। जाती उम्र में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली चौधरी से। जी अली, बताएगा, जब नवाज शरीफ यहाँ पहुँचे तो बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया, उनका बड़ी तादाद में कारकुनान और रहनुमा मौजूद थे वहाँ पर। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हर जगह पे ही वालेहाना इस्तकबाल किया गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट हो, लाहौर एयरपोर्ट हो या जलसा गाह हो या उसके बाद उनकी रिहाइश गाह हो, नवाज शरीफ इस वक्त अपनी रिहाइश गाह में पहुँच चुके हैं, अपनी रिहाइश गाह के अंदर मौजूद हैं। जबकि जैसे ही नवाज शरीफ जलसा गाह से जाती उम्र अपने घर पहुँचे तो यहाँ पर मौजूद कारकुनान ने, जो कि बहुत बड़ी तादाद में थे, उन्होंने वालेहाना इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई, जबकि यहाँ पर भी आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। जितना भी जाती उम्रा का बाहर का एरिया है उसकी दीवारों पे, दरख्तों पे, पौधों पर जो है वो लाइटें लगाई गई हैं, सब्ज़ रंग की, सफ़ेद रंग की। उसके साथ साथ जो है फूलों की पत्तियों से वेलकम होम भी लिखा गया है मेन एंट्रेंस के ऊपर। कारकुनान ने जो है वो पार्टी के हक़ में, नवाज शरीफ के हक़ में जो है वो यहाँ पे नारेबाजी की, जबकि कायदीन जो थे वो नवाज शरीफ के हमरा उनकी रिहाइशगाह के अंदर गए, जहाँ पे नवाज शरीफ ने अपने वालिद, अपनी वालदा और अपनी अहलिया की कब्रों पर हाज़िरी दी, वहाँ पे फातिहा ख्वानी की। जिसके बाद जो है वो कायदीन यहाँ से वापस रवाना होना शुरू हो गए। उसके बाद जो है जितने भी यहाँ पे कारकुनान मौजूद थे उनको भी यहाँ से वापस भिजवा दिया गया, क्योंकि आज सुबह से लेकर रात तक जो है वो काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है वो की गई हैं नून लीग की जानिब से। वो नवाज शरीफ के इस्लामाबाद में वेलकम हो, लाहौर में वेलकम हो या जलसे के इंतजामात हो, उसके बाद जो है वक्त से पहले ही तमाम अफराद को यहाँ से वापस भेज दिया गया। इस वक्त नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह के अंदर अपने अहल खाना के साथ मौजूद हैं, क्योंकि 4.5 साल का ये एक अरसा था जिसके बाद नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा में पहुँचे हैं। आज उसी तरीके से उनका वालेहाना इस्तकबाल भी किया गया हो और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो इस वक्त जो है वो अपनी अहल खाना के साथ गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। इंतहाई वालियाना इस्तकबाल था जिसमें आतिशबाजी का मुजाहरा देखने में आया, फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई, और यही इस्तकबाल जो है वो उनका जलसागाह में भी किया गया था कि आतिशबाजी हुई और फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई। 2 जहाज़ इस्तेमाल किए गए जो कि हवा में जो है वो फूलों की पत्तियाँ निछावर करते रहे, और एक काफ़ी जो है एक मजबूत किस्म का जो है वो जलसा देखने में आया था मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में, कि क्राउड बहुत ज़्यादा था, जितना अंदर था उतना ही बाहर था। और उसी तरीके से जो है वो कारकुनान जाती उम्रा के बाहर भी मौजूद थे बहुत बड़ी तादाद में, जिन्होंने अपने कायद को वेलकम किया। जितना भी जाती उम्रा का रोड है वहाँ पे फ्लेक्सिस लगाई गई हैं वेलकम की, वहाँ पे पोस्टर्स लगाए गए हैं, पार्टी परचम लगाए गए हैं नवाज शरीफ को खुशामदीद कहने के लिए। उनके घर के बाहर की जितनी भी दीवार है, जो मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे लाइटें लगाई गई हैं, जबकि गेट के बिल्कुल बाहर जो है वो गुलाब की पत्तियों के साथ जो है वो वेलकम होम लिखा गया है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। उनकी रिहाइशगाह के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी को जो है वो तैनात किया गया है नवाज शरीफ के साथ। जब नवाज शरीफ का काफिला जलसागाह से उनके घर रवाना हुआ। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली तौर पर आगाह किया अली। अल्लाह जिसे ख़त्म ना करना चाहे तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ इसकी ज़िंदा मिसाल है। मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून के जलसे से मरीम नवाज़ का जज्बाती खिताब आप दीदा हो गई। उनका कहना था कि आज नवाज शरीफ वापस अपने लोगों में आ गए। समझती थी मीनार पाकिस्तान बहुत बड़ी जगह है, मगर पार्क कारकुनान के लिए छोटा पड़ गया। जलसा गाह में सिर्फ 10% लोग हैं, बाकी बाहर हैं। मैंने आपको ये बताना था कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए, देख लो। वो आज अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे कि जिसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई, वो आज आन बान शान के साथ अपने मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। तभी यहाँ पर 10% लोग हैं, बाहर सड़कों पे चौक दे
सारी सड़कें माशाल्लाह। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जब यहाँ आ जाएंगे तो वो कहाँ समाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ कौम के ज़ख्मों पर मरहम रखने आ गए हैं, अब कौम की तकदीर बदलने वाली है। जलसे से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने हर बार कौम की तकदीर बदली तो इक़्तिदार से हटाया गया। नवाज शरीफ ने कौम के लिए जेलें काटी लेकिन सब्र किया। बोले 76 साल में कभी इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ जितने लोग नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आज जमा हुए हैं। आज ये कौम का बेटा आ गया है और यहाँ पर कौम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए बुजुर्गों, भाइयों और जवानों, बहनों, नवाज शरीफ आ गया है। पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी। नवाज शरीफ ये वो शख्स है जो मेमारे पाकिस्तान है। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ जिसने जेलें काटी हैं, सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, ठाठे मारता वो समंदर इस बात की गवाही दे रहा है। पाकिस्तान की तारीख में, मीनारे पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा और पुरजोश मजमा 76 साल में कभी नहीं हुआ। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। नवाज शरीफ की आमद पर शहर का शहर इस्तकबाल के लिए उमड़ आया। जलसागाह के तरफ से बाईपास तक ट्रैफिक जाम रहा। नवाज शरीफ की वापसी, शहर के शहर गांव के गांव इस्तकबाल के लिए मीनारे पाकिस्तान उमड़ आए। जलसागाह के बाहर गाड़ियों की पार्किंग कम पड़ गई। इर्द गिर्द की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। शहरी ट्रैफिक में कई घंटों से फंसे जरूर थे लेकिन किसी ने भी कोफ्त का इजहार नहीं किया। बोल के माइक पर कहा, लीडर की वापसी की खुशी इतनी है कि ट्रैफिक फंसने की परेशानी भी महसूस नहीं हो रही। अपने महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमें नजर आ रहा है कि अवाम का जोश और जज्बा, अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है इंशाअल्लाह। महबूब कायद के इस्तकबाल के लिए यहाँ पहुँचे हैं और इतने रश के बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि हम जलसागाह तक पहुँच सके। शरीफ के आने से इंशाल्लाह हालात बदलेंगे और उसी तरह का जैसा नवाज शरीफ छोड़कर गए थे मुल्क को, इतना अच्छा मुल्क चल रहा था जिस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया। हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला वही चीनी 55 रुपए होगी और इंतहाई सारे मामला ठीक हो जाएंगे। सिर्फ लाहौर शहर ही नहीं, दीगर शहरों से आने वालों का भी तांता बंधा रहा। सियालकोट गुजरावाला बाईपास पर भी ट्रैफिक जाम हो गया। नवाज शरीफ के स्टेज पर पहुंचने के बाद भी काफिले बाईपास पर फंसे हुए थे। नवाज शरीफ का इस्तकबाल, मीनारे पाकिस्तान। जलसे में नून लीग के मरकजी कायदीन कारकुनों का लहू गरमाते रहे। कारकुन अपने कायद के इस्तकबाल में पुरजोश नजर आए। नून लीग के कायदीन ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इंशाअल्लाह हमारे कायद, हमारे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलने की बुनियाद आज रखी जाएगी। जिन लोगों ने पनामा के नाम पर दूसरे तरीकों से नवाज शरीफ को और अहले पाकिस्तान को जुदा करने की कोशिश की, उनकी साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। वो चकनाचूर हो चुके हैं, वो तारीख के कूड़ादान में गुम हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल को तारीखी करार दे दिया। अमीर मकाम कहते हैं कि जिस तरह आज लोग निकले ऐसे पहले कभी नहीं निकले। नवाज शरीफ के अच्छे कामों की वजह से लोग इस्तकबाल के लिए निकले। शेख रोहेल असगर का कहना था कि नवाज शरीफ घर पर बैठने नहीं आए, आवाम से मिलते रहेंगे। पता नहीं पीपल्स पार्टी क्यों खाइफ है। बोल से गुफ्तगू में मायजा हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ गुर्बत मिटाने आए हैं। आज के जलसे की मेहनत एक बेटी ने वालिद के इस्तकबाल के लिए की है। आज तक नहीं देखी जिस तरह लोग निकले। अगर मोटरवे पर आप देख लेते कि पूरी मोटरवे भी जैम हो गई, हजारों की नहीं लाखों की तादाद में लोग निकले, जज्बे से निकले। उम्मीद रखते वैसे आज पाकिस्तान के लोग निकल आए। वो घर बैठने के लिए तो नहीं आए ना, अपने मुल्क में फिरेंगे, अपने मुल्क के अवाम को देखेंगे, उनके मसाइल देखेंगे, उनके पास जाएंगे। पीपल्स पार्टी को पता नहीं क्यों खाइफ है। नवाज शरीफ साहब आ गए, लोगों को पूरा इत्मीनान है कि उनको 2013 की तरह के रिलीफ मिलेंगे और उन्होंने ये तकरीर में भी मेंशन किया था कि उस वक्त रोटी कितने की थी और अब रोटी कितने की है और मैं गुर्बत मिटाने आया हूँ इंशाल्लाह। और वो ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात की उन्होंने कि वो ये जो है बड़ी मोहब्बत और खलूस के साथ एक बेटी ने अपने बाप के लिए जो है मेहनत की है। हाँ, पार्टी में सारे शामिल थे। और आपको बताएं कि JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ की वतन वापसी पर खुशी का इजहार। कायद नून लीग की आमद पर अपने ट्वीट में लिखा, कोई भी जबर और तसल्लुत लंबे अरसे तक किसी मोहब्बे वतन के अपने मुल्क आने का रास्ता नहीं रोक सकता। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने वतन वापसी पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ।
जमीयत उलमा इस्लाम सिंध का अवामी मसाइल और आवाम को सूबे के वसाइल से दूर रखने के खिलाफ सिंध अमन मार्च करने का ऐलान। ज़िला खैरपुर के शहर से आज काफिला कराची के लिए रवाना होगा, जो 2 नवंबर को कराची पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। 2 नवंबर को लाखों इंसानों का समंदर कराची में जमा होगा। कराची पहुंचने पर हमने सिंध अमन मार्च के एजेंडे के साथ साथ उस एजेंडे में तूफान अक्सा को भी शामिल किया है। दोनों एजेंडे जमा होंगे, जिसमें मुझे आज ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है। कराची सिंध अमन मार्च की स्टेज और तूफान अक्सा के स्टेज पर बराह रास्त किबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस के नुमाइंदगान, फ़लस्तीन के नुमाइंदगान और हमास के नुमाइंदगान, और वो 2 नवंबर को कराची स्टेज पर हमारे साथ मौजूद होंगे और पाकिस्तान के अवाम से मुखातब होंगे। और आपको बताएंगे कि कोयटा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बैनुल सूबाई शाहराह पर मुसाफिर बस और वैन में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक हो गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। हादसा बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह पर पेश आया। मुसाफिर बस रुकनी से लोरा लई जाने वाली मुसाफिर वैन से टकराई। लाशें और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची जिना अस्पताल में नामालूम अफराद खातून को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक खातून के साथ आने वालों ने खातून का नाम तहमीना और पता इब्राहिम हैदरी इलियास गोट लिखवाया है। खातून की हालत तशवीशनाक है, वो बयान देने के काबिल नहीं है। SSP साउथ का कहना है कि खातून को जिना अस्पताल में तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उधर लाड़काना में डाकू ने दुकान लूट ली। लाड़काना मार्केट थाना की हदूद में 3 डाकू करियाना की दुकान से 50,000 रुपये नकद, मोबाइल फ़ोन और घी के डिब्बे लेकर फरार हो गए। डकैती की CCTV फुटेज सामने आ गई। CCTV में 3 मुसल्लह अफराद को असलहे के जोर पर डकैती करते देखा जा सकता है। दुकानदार का कहना है कि पुलिस को इतला तो दे दी है, मगर शहर में अब दुकानदार महफूज नहीं रहे। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में फायरिंग का वाकया। घरेलू रंजिश पर सगे भाई ने छोटे भाई और भाभी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल होने वाले दोनों अफराद की शनाख्त इब्राहिम वल्द जमशेद और शकीला के नामों से हुई है। थाना इत्तेहाद टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम से पूछगछ और मजीद कार्रवाई का सिलसिला जारी है। और अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। तो गजा में इजरायली बमबारी जारी है। शहीद बेगुनाह फ़लस्तीनियों की तादाद 4,385 हो गई। ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 13,561 है, जिसमें 1,756 बच्चे और 967 ख़वातीन शामिल हैं। नाजायज़ सहूनी रियासत अपने सिवा दुनिया की किसी कौम, रंग और नस्ल को इंसान नहीं समझती। इसराइल की सफाकी और बर्बरियत की दास्तानें रोज़ रकम हो रही हैं और पूरी दुनिया अब इस बात की गवाह है कि इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों का कातिल है। इसराइल इंसानियत का कातिल था, है और रहेगा। हर रोज मासूम फ़लस्तीनी बच्चों के दर्द, खौफ और तकलीफ में आने वाले मनाजिर नाजायज रियासत की बर्बरियत के सबूत है। सिर्फ इंसान ही नहीं, चरिंद और परिंद भी इसराइली बर्बरियत का शिकार है। अल-कुद्स अस्पताल में एक नर्स के हाथ में ये चिड़िया बम धमाके की शिद्दत से जख्मी हो गई है। बदतरीन नस्ल कुशी और हमलों के बावजूद फ़लस्तीनियों अपने खुदा पर और अपने आज़म पर यकीन रखो। जुमे की अजान देता फ़लस्तीन में एक शख्स दुनिया को यही पैगाम दे रहा है। काबिज़ इसराइल ने वस्ती गजा में नसीरत कैंप पर फ़ज़ाई हमला किया है, जिससे दर्जनों शहादतों का खदशा है। बताया जा रहा है कि 18 फ़लस्तीनी इस हमले में शहीद हुए हैं। इजरायली फ़ज़ाइया ने कैंप में वाक़ई एक मसरूफ़ मार्केट को निशाना बनाया। इस हमले में कीमती फ़लस्तीनियों की शहादत का खदशा है। गजा पर इसराइली बमबारी में 12 साला फ़लस्तीनी यूट्यूबर ओनी अल्दोस भी शहीद हो गए। ओनी अल्दोस की ख्वाहिश थी कि वो बड़े यूट्यूबर बने और उनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स बने। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओनी के तमाम घर वाले भी इसराइली बमबारी में शहीद हो चुके हैं। हज़ारों सब्सक्राइबर रखने वाला 12 साला फ़लस्तीनी यूट्यूबर इसराइली बमबारी में शहीद। 12 साला ओनी अल्दोस ने गजा पर हालिया इसराइली जहारियत के आगाज़ से कुछ अरसे कबल यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया था, जहाँ वो गेमिंग की वीडियोस अपलोड करते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक मशहूर यूट्यूबर बने। ओनी अल्दोस के यूट्यूब चैनल पर 31,000 से ज़ायद सब्सक्राइबर हैं, जिस पर वो सिर्फ और सिर्फ 11 वीडियोस शेयर कर सके। अल्दोस का ख्वाब था कि उनके 1 लाख से ज़ायद फॉलोवर हो जाएं, लेकिन वो गजा पर ताज़ा तरीन इसराइली हमलों में शहीद हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओनी अल्दोस के तमाम घर वाले भी इसराइली बमबारी में शहीद हो चुके हैं। फाशिस्ट और नाजियों के नक्श कदम पर चलने वाला इसराइल अपने खिलाफ मामूली खबर और तनकीद सुनने का रवादार नहीं।
सऊदी हुकूमत ने हमास को दहशतगर्द ना कहने पर बरतानवी खबर रसां इदारे BBC पर पाबंदी लगाने की धमकी दे दी है, जबकि इसराइल ने अपने मुल्क में अल जज़ीरा के तमाम दफातर को बंद कर दिया है। इसराइली हुकूमत ने अल जज़ीरा की नशरियात को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया है। हमास को दहशतगर्द ना कहने और इजरायली बर्बरियत दिखाने पर इजराइल का आज़ादी इजहार पर बड़ा हमला, BBC और अल जज़ीरा को निशाना बना दिया। इजराइल ने अपने मुल्क में अल जज़ीरा की तमाम नशरियात पर पाबंदी लगाते हुए इसके तमाम दफातर को बंद कर दिया है। इजराइल के सरकारी TV ने अल जज़ीरा की नशरियात को अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। इजराइल में कतर के कायम अल जज़ीरा के दफातर की बंदिश का ऐलान इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, इजरायली वजीर मवासलात शलोमो कारहाई, वजीर दिफा योवो गैलेंट और वजारत खारजा ने किया। इजराइल ने अल जज़ीरा पर ही बस नहीं किया बल्कि बरतानवी खबर रसा इदारे BBC को भी धमकी दे दी है। इजराइल ने हमास को दहशतगर्द न लिखने और पुकारने पर धमकी देते हुए कहा है कि BBC के तमाम रिपोर्टर्स को इजराइल में काम करने से रोक दिया जाएगा। इजरायली सदर इसहाक हर्जोग ने एक इंटरव्यू में कहा कि BBC की नशरियात मुनाफिकाना है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने बताया है कि इजरायली बमबारी में 7 अक्टूबर से अब तक 22 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। शहीद सहाफ़ियों में 18 फ़लस्तीनी और 1 लबनानी शामिल है। CPJ के मुताबिक फ़लस्तीनी सहाफ़ी इजरायली बमबारी और फ़ौजियों की फायरिंग से शहीद हुए, जबकि इजरायली हमलों में 3 सहाफ़ी लापता और 8 ज़ख्मी हैं। एक बार फिर लंदन में फ़लस्तीन की हिमायत में तारीखी मार्च फॉर फ़लस्तीन के तहत 1 लाख मुजाहिरीन ने गज़ा में जंगबंदी और इमदादी सामान की महफूज मुंतकली का मुतालबा किया। मार्च के शुरका लंदन के हाइड पार्क में जमा हुए और फिर वहाँ से सरकारी इलाके व्हाइट हॉल की जानिब मार्च किया। और आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने खिताब के आखिर में फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआ कराई और कहा कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों को आज़ादी नसीब फरमाए। फ़लस्तीन की मदद करें, हम सब मिलकर फ़लस्तीन की मदद करें, उनको जुल्म से बचाएं। उन पे भी जो इस वक्त जुल्म का सिलसिला जो जारी है वो इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। हम उसको हर तरीके से कंडेम करते हैं और दुनिया से अपील करते हैं कि इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो और फ़लस्तीन का बाइज़्ज़त हल निकालो, उनका हक उनको वापस दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मुझे माओ बहनों ने फ़लस्तीन के लिए अपने जेवरात दिए, मैं अपनी माओ बहनों का मशकूर हूँ। अगर इसराइल को दहशतगर्द करार ना दिया तो अमेरिका सुन लो, इस्लामाबाद में तुम्हारा सफारत खाना मौजूद है। खानेवाल में जमात इस्लामी के जलसा आम से खिताब के दौरान अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि बहुत जमातों ने कहा कि उनका साथ दो, लेकिन मैंने कहा कि मेरी पार्टी सिर्फ सियासत नहीं बल्कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहती है। आज यहाँ माहौल है, मुझे अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए अपने जेवरात पेश किए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी माओ बहनों और बेटियों को दुनिया में इज्जत और आखिरत में जन्नत से नवाजे। काश यही जज्बा आपकी हुक्मरानों का होता। आज हमारे हजारों माए बहनों और बेटियां आसमान की तरफ मुंह करके हमें पुकार रही है, कहाँ है उम्मत मुस्लिमा। मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका ने गजा में इसराइल की सरपरस्ती बंद ना की और गजा जाने के लिए रास्ते ना खोले और इसराइल को एक जंगी मुजरिम और दहशतगर्द आलमी सतह पर करार नहीं दिया तो अमेरिका सुन लो, इस्लामाबाद में तुम्हारा सफारत खाना मौजूद है। अगर आप हमारे मुफादात का एहतराम नहीं करते फिर हम आपके मुफादात पर भी वही वार करेंगे जो हम कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं जारी वर्ल्ड कप के हवाले से। तो वर्ल्ड कप का टाकरा श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 5 विकेट से शिकस्त देकर पहली कामयाबी अपने नाम कर ली। सुदेरा समरविक्रमा 91 रन बनाकर नुमाया रहे। नीदरलैंड्स की तरफ से आर्यन दत्त ने 3 विकेट हासिल किए। कुफ्र टूट ही गया खुदा खुदा करके। वर्ल्ड कप के 19वें मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 5 विकेटों से शिकस्त देकर बिलाखिर फतह के सफर का आगाज कर दिया। श्रीलंका की इनिंग्स की खास बात सुधीरा समराविक्रमा की 91 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स रही। दीगर खिलाड़ियों में पाथिम नासिनका 54, चरत असलंका 44, धनंजय डी सिल्वा 30 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। नीदरलैंड्स की तरफ से आर्यन दत्त ने 3, पॉल विन मैक्रन और कॉलिन एक्रमैन एक श्रीलंकन बैटर को
को पवेलियन भेजने में कामयाब रहे। नीदरलैंड्स के साइब्रेंड एंड जलब्रेट 70 और लोगन वैन बैक 59 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। श्रीलंका के दिलशान वदशंका और कसन राजाथा ने 4-4 विकेटें हासिल की, जबकि महेश थेक्शाना के हिस्से में 1 विकेट आई। श्रीलंका की मेगा इवेंट में ये पहली कामयाबी है। इसे जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि नीदरलैंड्स की ये तीसरी शिकस्त है। वर्ल्ड कप 2023 के 20वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 229 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की टीम 400 रन के हदफ के ताक़ुब में 170 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड के मार्क वुड 43 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। जनूबी अफ्रीका के जेरल्ड कोटजी 3, लुंगी निगेडी और मार्को जॉनसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। चौके छक्के और विकेटों की बरसात, जनूबी अफ्रीकी टीम आई और छा गई। वर्ल्ड कप 2023 के 20वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 229 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की टीम 400 रन के हदफ के ताक़ुब में 170 रन पर ढेर हो गई। अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक 4, रेजा हेंड्रिक्स 85 और रेजी वैन डोजन 60 रन पर आउट हुए। एडन मरक्रम ने 48 और हेनर्स क्लासन ने 109 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इंग्लैंड की जानिब से आदिल रशीद ने 2 और रिकी टापली ने 3 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड के मार्क वुड 43 रन के साथ नुमाया रहे। एटिंग्स 35, हैरी ब्रूक 17 और कप्तान जॉर्ज बटलर 15 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से केराल्ड कोजी 3, जबकि लंगी नकदी और मैक्रो जैनसन 2-2 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। मैन ऑफ द मैच जनूबी अफ्रीका के हेनरिच क्लासन करार पाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बंगलौर से चेन्नई पहुंच गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज दोपहर 2 से 5 बजे के दरमियान ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच पीर को, जबकि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जुमे को शेड्यूल है। और मौसम सरमा की आमद है। सर्दी आते ही खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। मुल्क में जहां ताज़ा फलों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है, वहीं खुश्क मेवाजात की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। देखते हैं सक्खर से शाहिद अली की ये रिपोर्ट। सर्दी ने दस्तक दी, खुश्क मेवाजात की याद आई। ठंड आते ही खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, मगर महंगाई ने ड्राई फ्रूट्स को आवाम की पहुंच से दूर कर दिया है। दुकानदारों का कहना है खुश्क मेवाजात की कीमत में इजाफे का सबब तिजारत की बंदिश है। अफगानिस्तान और ईरान का बॉर्डर बंद है, माल ड्राई फ्रूट जो है ना सारा वहाँ से आ रही है। अभी महंगाई बहुत हो गया है। खरीदारों ने महंगाई का रोना रोते हुए कहा, पहले थोड़ा सा ही खा लेते थे, अब तो थोड़े से भी गए। सर्दी की सौगात हम कैसे खाएंगे? पहले तो थोड़ा सा ही खा लेते थे, अभी थोड़ा सा भी गए। इतनी महंगाई बढ़ गई है। पिछले साल रेट सस्ता था, अभी 2-3 महीने में जो है ना रेट इतना बढ़ गया है तो इंसान लेने के काबिल नहीं रहा है। गुज़िश्ता साल 2200 रुपए किलो फरोख्त होने वाली इंजीर इस साल 4800 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। अखरोट 1200 रुपए, अखरोट की गिरी 2400 रुपए, पिस्ता गिरी 6800 रुपए, बादाम 2400 रुपए, काजू 3600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट में चिलगोजा कहीं नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन शोएब मलिक के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सक्खर। लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुकामी होटल में मेगा शो का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की जजेस ने परिंदों का जायजा लेकर बेहतरीन परिंदों के मालिकान को इनामात से नवाजा। तफसीलात मोहम्मद कशान की इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में सजा पहला लव बर्ड मेगा शो। मकामी होटल में सजाई गई परिंदों के हवाले से तकरीब में मुख्तलिफ अक़साम के तोते नुमाइश के लिए पेश किए। मुल्की और गैर मुल्की जजेस ने परिंदों की 18 मुख्तलिफ कैटेगरीज में जायजा लिया। परिंदों के मयार और खूबसूरती के बिना पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशंस दी गयी। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन कैब खालिद आराई ने इवेंट को खुशाइंद करार दिया। पहली बार ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने पर मैं जितने भी इसके मुतज़मीन हैं, इनकी बड़ी कोशिश है, इन सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक एसोसिएशन का क़याम करने वाले हैं लव बर्ड्स से, इनकी हौसला अफजाई के लिए एक्सपोर्ट जो इम्पोर्ट जो भी मसाइल है जो इस इंडस्ट्री के, उनको हल करने के लिए ये एसोसिएशन बड़ा नुमाया किरदार अदा करेगी। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी ने जीतने वाले अफराद में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। पंजाब में गुड़ की तैयारी शुरू हो गई। जदीद दौर में भी कदीमी और रिवायती तरीके से गुड़ तैयार किया जा रहा है। उकाड़ा से राव नदीम की रिपोर्ट देखिए। मिठास का बेहतरीन जरिया गुड़। सर्दियाँ शुरू होते ही पंजाब में गुड़ की तैयारी शुरू हो गई। गन्ने के रस को पिघलाकर गुड़ बनाने से कबल उसकी सफाई की जाती है। घंटों मेहनत के बाद गुड़ पककर तैयार हो जाता है। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो उस टाइम ये वेलने का जो पूरा सिस्टम है ये स्टार्ट होता है, जिसमें हम गुड़ और शक्कर बनाते हैं, जिसमें गुड़ के लिए मुख्तलिफ स्पेशल किस्म के मसाला जात इस्तेमाल करते हैं। ये गुड़ जो है वो इसको हम पहले वेलने से गन्ना निकालते हैं, फिर इसका रस उबालते हैं। इसको साफ़ करने के लिए जो है ना रंगखड़ का इस्तेमाल किया जाता है, काजवान का इस्तेमाल किया जाता है।
پھر اس کو جب گرن میں لے کر آتے ہیں، اس کی پیسیوں کے مرحلے میں پہنچتے ہیں، تو پھر اس میں جو ہے نا وہ اس میں پاؤڈر ڈالا جاتا ہے اس کی چمک کے لیے اور ذائقے کے لیے. چھوٹی چھوٹی ہم پیسیاں بنا کر اس کو مارکیٹ میں لے کے دیا جاتا ہے. گنے کے فالتو اجزاء اور چھلکا گڑ پکانے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. گڑ کی تیاری ذرا مشکل لیکن مٹھاس بہت اعلیٰ ہے. تیاری کے بعد گڑ منڈی میں فروخت کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. کم وسائل والے کسان گڑ گھریلو استعمال کے لیے بھی رکھ لیتے. کا ایکس کے 2 نئے سبسکرپشن پروگرامز متعارف کرانے کا اعلان، اور جبکہ واٹس ایپ نے صارفین کے لیے ایک اور نئے دلچسپ فیچر کا اعلان کر دیا ہے. صارفین سے ماہانہ $8 فیس وصولی. ایکس میں صارفین کے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئیں. ایلن ماسک نے 2 نئے سبسکرپشن پروگرامز متعارف کرانے کا اعلان کر دیا. ایلن ماسک نے بتایا کہ ایک پروگرام کی قیمت موجودہ پروگرام سے کم ہوگی جس میں تمام فیچرز شامل ہوں گے، تاہم اشتہارات میں کمی نہیں ہوگی، جبکہ دوسرا مہنگا ہوگا لیکن اس میں اشتہارات نہیں ہوں گے. دوسری، واٹس ایپ نے اپنے صارفین کے لیے ایک دلچسپ نئے فیچر کا اعلان کر دیا. واٹس ایپ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آنے والا نیا فیچر صارفین کو ایک ساتھ 2 اکاؤنٹس کو بآسانی مینج کرنے کے قابل بنائے گا. اور دکھاتے ہیں آپ کو بھالو میاں کی چالاکیاں. بھوک لگی تو چوری پر اتر آیا. امریکہ میں بھالو گھر میں داخل ہو کر فریج سے لزانیاں چرا کر لے گئے. ویڈیو وائرل ہو گئی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.